Hello viewers, it's me Manu Ishu and welcome to my channel. In today's video, we are going to do section A of capital gain tax from F6. So if you are watching my video for the first time, please like and subscribe to my channel and share it among your friends. ओके एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें सो दैट कि मैं जब भी वीडियो अपडेट हूँ आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए है ना. So let's start. Question number 138. Mashita is planning to dispose of several assets and wants to avoid any capital gain tax liability. It ensures which of the following asset, which of his assets to sell and which to retain. Which two of the following asset would potentially realize a chargeable gain. Okay. So basically, question is having a six option out of which we have to select two which would rise a capital gain tax. So first, before explaining the question, I would like to say कि हमारा कौन कौन सा like asset वगैरह या फिर कौन कौन सा item वगैरह हमारा exempt है from the capital gain tax. The first one is motor car. ठीक है, motor car आपका exempt होता है. Certain kind of chattel like 6,000 rule apply करेंगे in case both if the cost and sales proceed is less than 6,000. In that case, the chattel would be exempt. आपका मेन रेजिडेंस इफ द इंडिविजुअल हैव लिव्ड थ्रू आउट द ईयर देन उस केस में भी वो एग्जेम्प्ट होगा. इफ नहीं रहा है देन इन दैट केस इट वुड बी चार्जेबल. और आपका कैश, करेंट एसेट्स है ना, आपका इन्वेंट्री वगैरह सब ये सब क्या आपका एग्जेम्प्ट है. एंड और क्या हो सकता है, हाँ, गिल्ट एज सिक्योरिटीज, क्वालिफाइड कॉर्पोरेट बॉन्ड, एलआईसी सर्टिफिकेट, ये सब आपका क्या है, exempt है from the for the purpose of chargeable gain tax. Okay, so we have to just identify the option which would which would give to rise the chargeable gain. The first one is qualified corporate bond. It is exempt. Okay, so this one is not our answer. Painting by a famous artist. Always painting is a non-vesting chattel. And here if cost and like sale proceed is less than 6,000, उस केस में ये हमारा exempt होगा. बट यहाँ पे कॉस्ट की कुछ बात नहीं की है, so we will assume it is chargeable. सी आपका गिल्ट सिक्योरिटी आपका एग्जेम्प्ट होता है. मेन रेसिडेंट दैट ही ऑलवेज लिव्ड इन, ये भी आपका एग्जेम्प्ट. कार, जैसा भी कार हो वो भी आपका एग्जेम्प्ट होगा. एंड मशीन यूज इन ट्रेड ऑन विच ही हैज क्लेम कैपिटल अलाउंस and would be sold for 22,000 and realize a profit, ये आपका चार्जेबल होगा. तो ऑप्शन इज बी एंड 139. Which of the following gifts made by individual is exempt from the capital gain tax? Okay. The first one is motor boat. Obvious motor boat is exempt. ठीक है. Okay. So where was we? Okay, so motor boat is exempt for the purpose of the capital gain tax. And option B, gift of unquoted shares is in a UK company value at 2,500 and cost 1,800. So unquoted, whether share is quoted or unquoted, it will be chargeable. So option B is not the answer. C, antique jewelry. So in case of jewelry is a non-vesting chattel and its cost is less than 6,000, but its sale proceed is more than 6,000. So in this case, 6,000 rule will be applied. According to the rule, it will be chargeable. So same rule will apply on the sculpture also. Okay, so option A is your answer. Okay, 140. Lexi sold a residential property which she has never lived in for 33,850 in the tax year 21-22. She had acquired the building for 150,000 in 2011. Lexi had a taxable income of 54,000 for a tax year 21-22. She sold no other asset in the tax year. What is the Lexi total capital gain tax liability? Okay. सो फर्स्ट बिफोर इंटरिंग इनटू द क्वेश्चंस, हम लोग को ये सोचना पड़ेगा ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है एंड कैपिटल गेन टैक्स वुड बी चार्ज at the rate of the 18% and 28% depends on the person taxable income. So here and दूसरा बात, she had never lived in, अगर लिव की होती तो उस केस में हमारा जीरो होता, एग्जेम्प्ट होता हमारा कैपिटल गेन टैक्स. बट she had never lived in, ठीक है, तो उसने सोल्ड किया, सेल प्रोसीड. So
हमारा सेल प्रोसीड कितना है 338,500 एंड उसको एक्वायर की थी 2011 में, सो लेस कॉस्ट इज 150,000 ओके। सो चार्जेबल गेन हमारा कितना आएगा, ठीक है, और लेस करेंगे कैपिटल अलाउंस, सॉरी कैपिटल अलाउंस बोल रही हूँ, एनुअल एग्जिम्ट अमाउंट कितना था हमारा 12,300। ओके, सो उसके बाद आएगा हमारा टैक्सेबल गेन। ओके, सो टैक्सेबल गेन हमारा हो जाएगा, ओके इतना हो जाएगा। सो हमारा सीजीटी लाइबिलिटी डिपेंड करता है हमारा टैक्सेबल इनकम पे, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 54,000। तो इसका मतलब है ये पर्सन हाई रेट टैक्स पेयर है, सो कैपिटल गेन हम लोग 28% पे चार्ज करेंगे, ठीक है। सो पूरा का पूरा अमाउंट ऊपर कर लेते हैं, इंटू 28% कर देते हैं। सो आंसर इज 49,336, ठीक है। सो ये हमारा कौन सा था इसका, ओके 141। Jackson acquired a holiday villa for 115,000 on 1 May 2011. He gave it to his wife Sophia on 30 September 2016 when it was worth 100,000. Sophia sold the villa for the 165,300 on 1 July 2021. The villa was neighbor the couple main home. Sophia had no other capital disposal in the tax year 21-22 and has a capital loss brought forward 4,300. Her taxable income for tax year 21-22 is 60,000. What is Sophia capital gain tax payable in the tax year 21-22? Okay. So Jackson has acquired a holiday villa, ठीक है, उसने acquire किया था in 2011 और उसने अपने wife को दे दिया. So in case of transfer of estate between husband and wife, no capital gain tax would arise, ठीक है। मतलब ट्रांसफर होता है नो लॉस नो गेन पे, ठीक है। ये एग्जेम्प्ट नहीं होता है, एग्जेम्प्ट कहीं नहीं मिल सकते, बट हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि ट्रांसफर तो होता है बट इट वुड अकर एट नो लॉस एंड नो गेन, ठीक है। तो जो हस्बैंड को कॉस्ट पड़ा था सेम कॉस्ट सोफिया को भी पड़ेगा, ठीक है। और सोफिया ने उसको कितने में बेचा है, मैं इसी क्वेश्चन पे कर देती हूँ। सोफिया ने उसको कितना कितना बेचा है, दैट इज 165,300 में, ठीक है। उसको कॉस्ट सेम है जिसके हस्बैंड का कॉस्ट पड़ेगा, हस्बैंड के लिए उसका सेल प्रोसीड हो जाएगा उसका कॉस्ट का ही वैल्यू, ठीक है। इसीलिए तो नो लॉस नो गेन में ट्रांसफर होता है ना। और उसके बाद में 12,300 हमारा एनुअल एग्जेम्प्ट अमाउंट, ठीक है। तो हमारा टैक्सेबल गेन आ जाएगा 38,000, ठीक है। उसके बाद ये हमारा टैक्सेबल गेन इस ईयर का है, तो इससे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, करेंट ईयर का लॉस ऑफसेट करने के बाद, फिर एनुअल एग्जिट अमाउंट ऑफसेट करने के बाद, तब हम लोग बोर्ड प्रोवाइड लॉस एडजस्ट करते हैं, है ना। तो हमारा ये यहाँ पे लेस करेंगे कैपिटल लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड, ओके। सो व्हाट इज द अमाउंट 4,300, ठीक है। तो हमारा टैक्सेबल गेन क्या हो जाएगा, 33,700 और उसका टैक्सेबल इनकम है 60,000, इट मीन सी इज हाई रेट टैक्स पेयर, है ना। सो अगेन द सेम अमाउंट, मतलब सेम परसेंटेज 28% पे चार्ज होगा, ठीक है। सो आंसर इज 9436, okay. Okay, 142 number. Which of the following cannot be achieved as a direct result of using this type of tax planning? क्वेश्चन पढ़ते हैं, पुटिंग एस्टेट इनटू ए जॉइंट नेम विद स्पाउस और पार्टनर इन रजिस्टर्ड सिविल और
or a partner in registered civil partnership prior to the asset disposal can sensible capital gain tax planning. Okay, so option A, making the best use of annual exempt amount. Obvious, अगर आप अपने वाइफ और हस्बैंड के नाम पे अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी नेम एसेट ओन करते हो, अगर मतलब पार्टली उसको दे देते हो, आधा खुद रखते हो, 50-50 करते हो, जितना भी पोर्शन, इस केस में क्या होगा कि ईच इंडिविजुअल का अपना अपना एनुअल एग्जेम्प्ट अमाउंट होगा, ठीक है। तो ये हम अचीव कर सकते हैं। ए नंबर, डिफरिंग द सीजीटी ड्यू डेट, ऑब्वियस नॉट, ड्यू डेट दोनों के लिए सेम होगा, वेदर मतलब इंडिविजुअली सोल्ड कर रहे हैं तो वो हम लोग डिफर नहीं कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। और ठीक है, ऑप्शन सी क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सीजीटी पेबल। ऑब्वियस, अगर मान लो कि एक पार्टनर बेसिक रेट टैक्स पेयर है और दूसरा हायर रेट टैक्स पेयर है, तो ऑब्वियस सीजीटी मतलब जो पे कर रहे हैं वो रिड्यूस होगा ना। एक पार्टनर मान लो कि अब जैसे ऊपर के केस में ही था, अब अगर एक पार्टनर बेसिक रेट टैक्स पेयर होता, अगर वो प्रॉपर्टी को सोल्ड करता तो 28% के बदला वो 18% पे सोल्ड होता, तो वो हमारा सीजीटी को रिड्यूस करता। ऑब्वियस ये अचीव कर सकते हैं। डी नंबर, मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ कैपिटल लॉस। यस, अगर अपना अपना कैपिटल लॉस भी ब्रॉड प्रोवाइड है वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोग बस सीजीटी का ड्यू डेट हम लोग डिफर नहीं कर सकते, रेस्ट वी कैन अचीव बाय ऑनिंग द बाय पुटिंग द एसेट इनटू द जॉइंट नेम। Okay, 143. Which two of the following statement about allowable capital loss for an individual are true? Okay, the annual exempt amount is deducted before any brought forward capital loss are utilized against the current year gains. मैंने पहले भी बोला भी इस क्वेश्चन में आपको कि पहले हम लोग करंट ईयर का गेन एंड करंट ईयर का लॉस को ऑफसेट करते हैं एक दूसरे से, फिर गेन लॉस बचा देन उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर मान लो गेन आया है उसके बाद हम लोग एईए एनुअल एग्जिम्ट अमाउंट डिडक्ट करेंगे, उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस एडजस्ट करेंगे। ये क्या बोल रहा है, एनुअल एग्जिम्ट अमाउंट इज डिडक्टेड बिफोर एनी ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस आर यूटिलाइज्ड अगेंस्ट द करंट ईयर गेन। ऑब्वियस हम लोग पहले एनुअल एग्जिम्ट अमाउंट यूज करते हैं, देन आफ्टर वी यूज ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस। तो ये हमारा करेक्ट है। ओके, सो बी नंबर, करेंट ईयर कैपिटल लॉस रिमेनिंग after offset against current year chargeable gain can always be offset against current year income। वो किसी और इनकम से बिल्कुल नहीं डिडक्ट होगा, वो कैरी फॉरवर्ड होगा so that it can be offset against if there is any chargeable gain in the future। so ये भी हमारा गलत है। थर्ड क्या कहता है, annual exempt amount is deducted before any current year capital loss are utilized against the current year gain। ये मैं अभी भी बोला मैंने कि पहले current year का लॉस यूटिलाइज होता है, फिर उसके बाद annual exempt amount, then brought forward loss। तो ये गलत है। तो डी तो ऑब्वियस करेक्ट होगा। अब क्या बोल रहा है डी, एक्सेस करंट ईयर कैपिटल लॉस आर कैरी फॉरवर्ड इनडेफिनेटली अंटिल द फ्यूचर चार्ज विल गेट अराइज। ऑब्वियस, जो मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया। ओके, so 144 number, Noah sold two painting and at an auction of on 14 May 2021 for 4,000 and 7,200 respectively. She had purchased a two painting for 1,000 each on the 22 May 2010. What is the total chargeable gain arising on the sale of two painting? ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दो वो पेंटिंग सोल्ड हुआ, एक हुआ, देखो अब इसमें क्या देखना है, एक सोल्ड हुआ है 4,000 पे, ठीक है, जिसका कॉस्ट 1,000, मतलब पेंटिंग तो हमारा नॉन वेस्टिंग चैटल है जिसपे हम लोग वी विल यूज और अप्लाई 6,000 रूल, ठीक है। 6,000 के रूल के अकॉर्डिंग बोथ द कॉस्ट एज वेल एज सेल प्रोसीड ऑफ द वन पेंटिंग इज लेस देन 6,000 सो दैट वुड बी एग्जेम्प्ट, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सो दूसरा वाला केस देखते हैं, दूसरे वाले में क्या होगा, हमारा सेल प्रोसीड इज मोर देन 6,000 बट कॉस्ट इज लेस देन 6,000। तो आपने टेबल देखा होगा बुक में 6,000 का, so according to 6,000 rules, if the cost is less than 6,000 and sale proceed is more than 6,000, in that case हम लोग 5/3 वाला रूल्स लगाएंगे। 5/3 वाला रूल्स क्या कहता है, आप नॉर्मल चार्जेबल गेन निकाल लो, ठीक है। नॉर्मल चार्जेबल गेन कैसे निकलेगा, आपका सेल प्रोसीड है आपका 7,200, लेस कर लोगे कॉस्ट आपका है 1,000, ठीक है। तो आपका चार्जेबल गेन क्या हो जाएगा, इसको माइनस करने के बाद, ठीक है, ये एक चार्जेबल गेन आया। सो अब 5/3 रूल्स क्या कहता है आपका,
कि चार्जेबल गेन जो है ना ये रिस्ट्रिक्टेड होगा। कैसे रिस्ट्रिक्ट होगा? 5/3 इंटू हम लोग सेल प्रोसीड कितना है हमारा 7200 लेंगे, बस कॉस्ट को 6000 कर देंगे हम लोग। ग्रॉस सेल प्रोसीड माइनस 6000, इसके अकॉर्डिंग हमारा कितना आ रहा है? ओके, सो हमारा चार्जेबल गेन इन दोनों में से लोअर जो होगा वो होगा, इट मीन्स 2000। ठीक है, अभी आपका ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 5/3 रूल्स के अकॉर्डिंग आया हुआ है, जो फॉर्मूला बारे में रिफ्लेक्ट कर रहा है वो देख सकते हो आप। तो 6000 रूल ऐसे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट वाला तो आपका एग्जाम है क्योंकि बोथ हैविंग द कॉस्ट एज वेल एज सेल प्रोसीड लेस देन 6000, इसलिए एग्जाम। Okay, 145. Liam purchased this antique glass vase for 22,000 on 30 March 2006, incurring legal fee of 800. The market for the antique glassware has since slumped, and Liam sold the vase for 5,500 on 1st January 2022, incurring auction fee of 300. What is Liam allowable loss for the disposal on this disposal? ओके, सो क्वेश्चन नंबर है आपका 145। तो एंटिक वेस्ट क्या है हमारा? नॉन वेस्टिंग चेटल है, ठीक है, और जिसका कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इज मोर देन 6000, जिसमें 6000 रूल अप्लाई हुआ क्योंकि ये नॉन वेस्टिंग चैटल है, एंड कॉस्ट 6000 से ज्यादा है बट सेल प्रोसीड इज लेस देन 6000। इस केस में हम लोग क्या करते हैं? हाँ, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो सेल प्रोसीड होते हैं ना उसको हम लोग 6000 कंसिडर करेंगे, और जो भी लॉस आएगा उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे इस अमाउंट तक। तो यहाँ पे हम लोग डीम्ड सेल प्रोसीड कंसिडर करेंगे 6000 अकॉर्डिंग टू 6000 रूल, फिर लेस करेंगे जो लीगल फी ऑक्शनर फी लगा हुआ है। ऑक्शनर कितना लगा हुआ है हमारा? 300। ठीक है, ये नेट सेल प्रोसीड में शॉर्टकट ले देती हूँ, पूरा ले देती हूँ। नेट सेल प्रोसीड ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। फिर लेस करेंगे हम कॉस्ट, कॉस्ट हमारा कितना है? 22,000 है ना। फिर उसके बाद लेस करेंगे इंसिडेंटल कॉस्ट में क्या आता है हमारा? लीगल फी, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट? 800। उसके बाद हमारा अलाउएबल लॉस होगा, सो ये हमारा आंसर होगा फाइनल। हम लॉस को यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये 6000 रूल के अकॉर्डिंग हमने अप्लाई किया है। ओके, सो आपका 146 क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट अमाउंट ऑफ कैपिटल लॉस कैन नॉक कैरी फॉरवर्ड टू टैक्स ईयर 22-23? For tax year 21-22, NOG has a chargeable gain of 23,700 and capital loss of 10,100. C has a unused capital loss of 5,300 brought forward for tax year 2021. What is the amount of capital loss can NOG carry forward to tax year 22-23? Okay, सो मैंने प्रीवियसली भी बोला उस क्वेश्चन में हम लोग पहले करंट ईयर का गेन और कैपिटल लॉस को ऑफसेट करेंगे। तो पहले चार्जेबल गेन हमारा करंट ईयर का क्या है? चार्जेबल गेन इज 23,700। फिर हमारा कैपिटल लॉस करंट ईयर का क्या है? करंट ईयर का कैपिटल लॉस है हमारा 10,100, ठीक है। सो नेट चार्जेबल गेन क्या हुआ हमारा? नेट चार्जेबल गेन हमारा ये हो जाएगा। फिर लेस करेंगे हम ए दैट इज 12,300, ठीक है। और उसके बाद हमारा आएगा लेस, नहीं कितना अमाउंट बचता है वो देखते हैं। फिर लेस करेंगे कैपिटल लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड, कैपिटल लॉस हमारे पास कितना है? 5,300, आउट ऑफ विच 1,300 यूज हो गया, ठीक है। तो 1,300 जब चला जाएगा तो हमारे पास टैक्सेबल गेन हमारा कितना बच जाएगा? 0, ठीक है। तो कैपिटल लॉस हमारे पास 5,300 था, जिसमें से 1,300 हम लोग ने यूज कर लिया, कितना बच गया? 4,000 विच विल बी कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 147।
147 क्या कहता है, व्हाट इज द जेसिका चार्जेबल गेन इन रेस्पेक्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ कॉपीराइट ऑन 31st March 2022, 31st March 2022, Jessica sold a copyright of 28,800. The copyright had been purchased on 1st April 2016 for 21,000 when it had an expired life of 15 years. What is the Jessica chargeable gain in respect of disposal of the copyright? Okay, तो बेसिकली इसका फॉर्मूला है, हम लोगों ने बुक में भी देखा होगा, ठीक है। तो सेल प्रोसीड कितना हो जाएगा सेल प्रोसीड हमारा हो जाएगा कितना है 28,800। अब लेस कॉस्ट, कॉस्ट में क्या करेंगे, हमारा कॉस्ट कितना लगा था 21,000 और कितना इसका रिमेनिंग लाइफ है। अब हम लोग ने परचेज करते वक्त इसका 15 साल तक कब परचेज किया था 1 अप्रैल 2016, तो सोल्ड कब करे 2022 में मार्च को, तो कितना हो जाएगा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 साल यूज किया, इट मीन्स 9 years स्टिल रिमेनिंग, so 9 डिवाइड बाई रिमेनिंग लाइफ डिवाइड बाई टोटल लाइफ, इतना हमारी कॉस्ट आ जाएगा। So bracket 21,000 into 9 divided by 12 तो हमारा चार्जेबल गेन हो जाएगा जस्ट वेट, मैंने कैलकुलेशन गलती किया था सर, 12 नहीं 15 हो गई है। यस, सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके ओके, ये इजी था, फॉर्मूला बेस्ड है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी रहेगा, सो डोंट वरी, आपको बस कंसेप्ट जानने की जरूरत है, कब चीज कौन सी चीज को कब अप्लाई करना है, यू ओनली नीड टू नो दिस, बाकी हो जाएगा। Okay, so Irene bought 30 acres of land on 1st March 2014 for 300,000. On 1st March 2016, he sold 10 acres of land for 150,000. At this time, the remaining land was worth 250,000. On 1st January 2022, Irene sold the remaining acres of itna. Identify the chargeable gain and due date in respect of the capital gain tax payable there. तो ड्यू डेट के लिए जो फर्स्ट आपका 21-22 टैक्स के लिए 31 जनवरी 2023 है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। आप उसमें चैप्टर 13 में भी पढ़ोगे, आप इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, क्लास 2 एंड क्लास 4 ऐसी वी पे ऑन 31 जनवरी 2023 फॉर टैक्स ईयर 21-22, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। ओनली इशू है कि हम लोग कैलकुलेशन करना चार्जेबल गेन लैंड के केस में कैसे करेंगे, तो इसके लिए बस फॉर्मूला है वो देखेंगे। पहले सेल प्रोसीड कितना में किया है, हम लोग को रिमेनिंग का देखना है ना, ये वाला तो सोल्ड 16 में हुआ, ये टैक्स ईयर में काउंट ही नहीं होगा 21-22 में, तो इस वाले चार्जेबल गेन को देखना है, नीचे वाले के कितना राइज हुआ है, जो पार्ट वाला सोल्ड किया था, तो 425,600 में सोल्ड किया हुआ है, लेस करेंगे हम लोग कॉस्ट, कॉस्ट के लिए अब सबसे पहले तो रफ कर लेते हैं इधर, ठीक है, रफ ये करते हैं, तो जब क्या बोलते हैं पूरा 30 एकड़ लैंड कितने कॉस्ट का था, दैट इज द 300,000 का था, ठीक है, इनटू करेंगे हम लोग वो वाले जो लैंड फर्स्ट टाइम सोल्ड किया है 10 एकड़ कितने में सोल्ड किया था 150,000 में, इसको डिवाइड करेंगे 150,000 प्लस रिमेनिंग जो लैंड है उसका वर्थ 150,000 250,000, ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। मतलब कि जो कॉस्ट है वो लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका सेल प्रोसीड हुआ है, जो आपने फर्स्ट टाइम सोल्ड किया था वहां से, वो वाला सेल प्रोसीड डिवाइड करेंगे वो सेल प्रोसीड प्लस रिमेनिंग लाइन का जो वैल्यू 250,000, इसको ऐड, यहाँ सर्टेन वैल्यू आएगी एंड दैट एक मिनट में बताती हूँ कितना वैल्यू आएगी। ये आपका 300,000 इंटू 150,000, इसको डिवाइड करेंगे 150 प्लस 250 मीन्स 400, ठीक है, ये करने के बाद इतना आएगा। ये आपका 10 एकड़ जो सोल्ड किया था 16 में उसका कॉस्ट है। अब अभी वाले के लिए कॉस्ट के लिए यहाँ पे हम लोग जाते हैं, 300,000 पूरा कॉस्ट था, जिसमें से 1125 10 एकड़ के लिए है, तो बाकी का 20 एकड़ जो सोल्ड हुआ है तो इसका कॉस्ट हो जाएगा
118,7500। तो आपका चार्जेबल गेन हो जाएगा 238100। दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आया होगा आप लोग को। ये पोर्शन थोड़ा ट्रिकी था, ये मतलब इससे को थोड़ा समझना है कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत सारी दी है, उसको अच्छे से कर लो, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, okay, so 149 number. Habib purchased a copyright on 30 April 2015, 2005 for 31,320. Remaining life of the copyright at the date of purchase was 30 years. On 30 April 2021, Habib sold the copyright for 27,900. What is the Habib chargeable gain or allowable loss for tax year 21-22 in respect of disposal of copyright? ये ऊपर का ही क्वेश्चन है, एक बार मैं आपको छोड़ती हूँ, आप लोग ट्राई करो, अगर नहीं बनेगा तो मुझे जरूर कमेंट करना। यहाँ पे कंफ्यूजन बस आपको ये चीज ध्यान देना है, ये रिमेनिंग लाइफ ऑफ कॉपीराइट एट द डेट ऑफ परचेज, ये डेट ऑफ परचेज दे रहा है, ये रिमेनिंग लाइफ नहीं दे रहा है। ठीक है, ये चीज झुक के आप 30 डिवाइड बाई वो फिर गलती हो जाएगा। रिमेनिंग लाइफ ये नहीं, ये आपका टोटल लाइफ है, जब परचेज करते हो इतना टोटल लाइफ था उसका। ये चीज ध्यान देना, अदरवाइज ट्राई करो, अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, आई विल हेल्प यू आउट। सो 150 नंबर। Cooper purchased a holiday home for 142,000 on 1st October 2015. The property was damaged in a fire on 1st January 2016. Cooper received a compensation for 60,000 from insurance company on 31st January 2017. He spent 70,000 on restoring the home in March 2017 and it was worth 180,000 after the restoration. Cooper made a election such that the part disposal did not arise in the tax year 2016-17. Cooper sold the holiday home for 30,000 in on 1st March 2020. What is the Cooper chargeable gain on the sale? Okay. तो पहले सेल प्रोसीड लिखते हैं लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 150। तो पहले सेल प्रोसीड कितना में बेचे हैं वो 230,000, ठीक है। लेस करेंगे कॉस्ट, कॉस्ट के हमारा कितना था, हम लोग कैलकुलेट करना होगा कॉस्ट। कॉस्ट के लिए क्या करना होगा, अब इसको इंश्योरेंस रिसीव हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंश्योरेंस रिसीव हो रहा है, तो इंश्योरेंस जब रिसीव हो रहा है डैमेज के केस में, ठीक है, डिस्ट्रॉय के केस में तो हम पूरा का पूरा सेल प्रोसीड ले लेंगे। डैमेज के केस में हम लोग कंसिडर करते हैं कि पार्ट डिस्पोजल हुआ है, ठीक है। और ये भी चेक करेंगे उस इंश्योरेंस को हम लोग उसमें रिस्टोरेशन के लिए खर्च किए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे खर्च किया रिस्टोरेशन में, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट हो जाएगा, पहले ओरिजिनल कॉस्ट देखते हैं क्या है। ओरिजिनल कॉस्ट, हमारा ओरिजिनल कॉस्ट क्या था 142,000, ठीक है। उसके बाद हम लोग को रिस्टोरेशन में कितना खर्च किया हम लोग ने, रिस्टोरेशन हमने कितना खर्च किया है 70,000, ठीक है। इसके बाद हम लोग लेस करेंगे जो हम लोग ने इंश्योरेंस से प्रोसीड किया था। इंश्योरेंस से प्रोसीड कितना किया था 60,000। इसका कॉस्ट हो जाएगा ये 152,000 का कॉस्ट हो गया। सो आपका चार्जेबल गेन हो जाएगा दिस माइनस दिस। आई एम सो सॉरी, ठीक है। चार्जेबल गेन हो गया ये 78,000। ओके, ये हो गया। यही कॉन्सेप्ट आपका ये वाला भी क्वेश्चन बेस्ड है, बस आपको बेस कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, सेम चीज है। तो ये पोर्शन निकाला ना हम लोग ने कॉस्ट वाला, ये चीज में भी करना है इसमें। ओहो,
On 10 January 2022, freehold property owned by the Winifred was damaged by a fire, and the property has been purchased on 29 May 2009 for 73,000. Winifred received insurance proceeds of 37,200 on 23rd February 2022, and she spent total of 41,700 during the March 2022 restoring the property. Winfred has elected to disregard the part disposal. तो यहाँ पे वही बात है, डैमेज हुआ है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। डिस्ट्रॉय का फिर अलग केस होता है, डैमेज में समझेंगे हम लोग पार्ट डिस्पोजल हुआ है, तो पार्ट डिस्पोजल का यहाँ पे कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ बोला हुआ है। तो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट क्या था? ओरिजिनल कॉस्ट हमारा था 73,000, ठीक है। इस पे हम लोग ने रीस्टोरेशन में कितना खर्च किया हुआ है? 41,700, और लेस कर देंगे जो इंश्योरेंस से आया हुआ है पैसा, तो हमारा बेस कॉस्ट निकल जाएगा। ओके ओके, सो 152 नंबर, what is the chargeable gain on the gift of 10,000 shares? Okay, Madison gave a 10,000 share in the Miles PLC to a debtor during the tax year 21-22. The share were quoted in the exchange official list at 120 penny and 136 penny share on the daily of the sale. Madison acquired 15,000 shares in Miles PLC on 1st January 2016 for 4,000. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आपका सेल प्रोसीड जो कैलकुलेट करना है, कॉस्ट तो दिया हुआ है ऑब्वियसली, ठीक है। तो एक मिनट, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 152 ना, 152, और सेल प्रोसीड हमारा क्या है? सेल प्रोसीड 10,000 शेयर दिया हुआ है, ठीक है। अब सेल प्रोसीड है, ये कनेक्टेड पार्टी से सेल किया हुआ है, इतनी अपनी बेटी को दे रहा है, डॉटर को दे रहा है, तो उस केस में हम लोग स्टॉक एक्सचेंज पे जो हमारा प्राइस दिया हुआ है ना, कोई ये वाला प्राइस, इसका एवरेज लेंगे। तो आपका हो जाएगा 120 प्लस 136। अब इसको डिवाइड करेंगे, एक तो 100 कन्वर्ट, क्योंकि पाउंड में आपका आंसर मांग रहा है, डिवाइड बाय 100, और 2 एवरेज के लिए, तो 200 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इतना आया। अब लेस कॉस्ट, कॉस्ट के लिए हम लोग करेंगे, हमारा कॉस्ट कितना है? 4,000, 15,000 शेयर के लिए है, तो हम लोगों ने 10,000 बेचा है, तो 10 डिवाइड बाई 15, ये आपका कॉस्ट आ जाएगा। इसको राउंड अप कर देते हैं, तो हमारा चार्जेबल गेन हो जाएगा 10,133, okay. Okay, so 153. Classica has disposed of the following share and security during the tax year 21-22. What is the Classica total chargeable gain on this disposal in the tax year 21-22? तो फर्स्ट में वो गिल्ड सोल्ड किए, गिल्ड आपका क्या है? चार्जेबल गेन पर्पज से एग्जेम्प्ट, ठीक है। उसके बाद उसने शेयर सोल्ड किया, 20,000 शेयर्स इन मार्टिन पीएलसी सोल्ड टू अ सिस्टर फॉर 7,000. मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑन द डे वाज day of sale was 12,300. The share was purchased for 8,000 in February 2019. तो यहाँ पे हम लोग को अगर कनेक्टेड पार्टी से सेल करते हैं ना, और जब डील आर्म लेंथ पे नहीं होती है, आर्म लेंथ इन द सेंस लाइक जो मार्केट वैल्यू है उसके उससे कम में बेच रहे हैं, उस केस में हम लोग मार्केट वैल्यू ही कंसीडर करेंगे, इवन जो कम में क्यों ना बेचा हुआ है। यहाँ पे उसने 7,000 में बेचा है क्योंकि बहन थी उसकी, इसलिए कम में बेच दिया, बट HMRC बोलती है जो मार्केट वैल्यू है वो उसके थ्रू हम लोग चार्जेबल गेन चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे चार्जेबल गेन निकालने के लिए सेल प्रोसीड कंसीडर करेंगे 12,300, ठीक है। और उसका कॉस्ट भी आपको दिया हुआ है, दैट इज द 8,000। 8,000 घटाने के बाद आपको चार्जेबल गेन आ जाएगा 4,300, ठीक है। ये तो एग्जेम्प्टी हो जाएगा ऊपर वाला, उसका कोई इश्यू नहीं है, इसी का बस हम लोग को दिखाना है। ओके, सो 154. Select the share purchase which will match to the 20,000 shares sold on the 1st October 2021, ठीक है। तो आपका फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सेम डे देखते हैं, जिसने सेल कब किया है 1st अक्टूबर को, ठीक है। तो सेम डे में कोई परचेज किए, ऑब्वियस किए 1st अक्टूबर को 2,000 शेयर, तो फर्स्ट में वही मैच करेंगे हम लोग कि 2,000 शेयर परचेज ऑन 1st अक्टूबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर सेकेंड में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 30 डेज में, नेक्स्ट 30 डेज में आपका ये आता है परचेज वाला, तो ये 3,000 शेयर आ जाएगा,
परसेंट 23 अक्टूबर, और बाकी का जो पूल शेयर पूल में 1 अक्टूबर तक जो भी शेयर पूल में उसमें देखेंगे शेयर पूल में कितना बच गया आपका 22 प्लस, नहीं तो हो ही गया 22,000 बच गया, 22,000 बचा ना, नहीं हम लोग को टोटल सेल हुआ है 20,000 ना, तो 20,000 में से आपका 2,000 ये गया, 3,000 15,000 गया, फिर 5,000 गया, 15,000 बच गया। तो 15,000 हम लोग शेयर पूल से देखेंगे एज एट 1 अक्टूबर। ठीक है, ये रूल से शेयर के रिगार्डिंग जब सेल करते हो इंडिविजुअल के लिए, पहले हम लोग सेम डे देखते हैं, फिर नेक्स्ट 30 डेज, देन शेयर पूल में जाते हैं। Okay, so 155 number. In February 2022, Seaborn hired a taxpayer, sold a share in Banana Ltd, a trading company. She realized a gain of 45,300. Sobin acquired the newly issued share in July 2018. Sobin has never worked at Banana Ltd. Limited, nor she had made any previous share disposal. What is the chargeable gain tax liability arising on the disposal of shares in February 2022, assuming all available relief are claimed and Siobhan makes no other disposal in the tax year 21-22. ओके, तो सबसे पहले शेयर का केस है, तो शेयर का केस में इसको लाइक एक बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ मिल सकता है, इन्वेस्टर रिलीफ भी मिल सकता है, और कोई रिलीफ है अवेलेबल है अभी फिलहाल, तो यही जहाँ तक लगता है। ठीक है, तो अभी इसमें लेकिन क्या है कि बिजनेस एसेट डिस्पोजल के लिए उसको एम्प्लॉय होना पड़ा, पर इसमें बोल रखा है कि एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, और इसने शेयर को न्यूली इश्यूड शेयर बोल रखा है, ऑब्वियसली ये इन्वेस्टर रिलीफ इसको मिलेगा। इन्वेस्टर रिलीफ का कंडीशन ये मीट कर रहा है। इन्वेस्टर रिलीफ के लिए आपका अनलिस्टेड शेयर होना पड़ा, ठीक है, और आप सब्सक्राइब न्यूली जो शेयर होते हैं ना वो सब्सक्राइब करना पड़ा ऑन और आफ्टर 17 मार्च 2016, और उसको होल्ड भी करना पड़ा फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स स्टार्टिंग ऑन द 6 अप्रैल 2016। ठीक है, और इंडिविजुअल को उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना पड़ा, इसको ऑब्वियसली इन्वेस्टर रिलीफ मिलेगा। इन्वेस्टर रिलीफ में मिलेगा तो क्या होगा उसको 10 मिलियन आई थिंक ना, 10 मिलियन तक उसको लाइक 10% पे उसका मतलब इवन तो वो हायर टैक्स पे क्यों ना हो उसको 10% पे सीजीटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका गेन जो 45,300 ऑलरेडी बोल रखा है, नहीं हम लोग को कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 155 है, तो इसका चार्जेबल गेन कितना है लेस करेंगे ए ये एनुअल एग्जिम्ट अमाउंट दैट इज 12,300, इसका टैक्सेबल गेन हो जाएगा अब इसका 10% वो टैक्स भरेगा दैट इज 3,300। ठीक है, ओके ओके, अभी काफी सारे क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।